چیئرمین انٹر بورڈ نے بڑا اعتراف کیا، تسلیم کیا کہ کراچی کے بچوں کا تعلیمی معیار پنجاب سے کم ہے۔ چیئرمین انٹر بورڈ نے اعتراف کر لیا۔ چیئرمین انٹر بورڈ نسیم میمن کے مطابق KPK سے ہمارے بچوں کا تعلیمی معیار کم ہے۔ پنجاب جیسا گریڈنگ سسٹم کراچی میں فوری نافذ نہیں کر سکتے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہماری نمائندہ آئمہ خان سے۔ آئمہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں گریڈنگ سسٹم کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ سندھ میں بھی جو ہے وہ گریڈنگ سسٹم نافذ کیا جائے گا، جبکہ اب جو ہے وہ یہ خبر آ رہی ہے، یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ اس سال جو ہے وہ گریڈنگ سسٹم نافذ نہیں کیا جائے گا، جس پر جو ہے وہ چیئرمین انٹر بورڈ نے جو ہے وہ بڑا اعتراف کر دیا ہے۔ کراچی کے بچوں کا جو تعلیمی معیار ہے وہ پنجاب سے کم ہے۔ City 21 سے گفتگو میں چیئرمین انٹر بورڈ نے کمزوری جو ہے وہ تسلیم کر لی ہے۔ KPK سے بھی ہمارے بچوں کا تعلیمی معیار جو ہے وہ بہت کم ہے۔ نسیم احمد میمن کے مطابق جو ہے پنجاب جیسے گریڈنگ سسٹم کراچی میں فوراً نافذ نہیں کر سکتے، چاہتے ہیں نئی گریڈنگ پالیسی اس سال سے نافذ نہ کرے، گریڈنگ پالیسی کا نفاذ اس سال مؤخر کرنا چاہتے ہیں۔ کراچی میں نئی گریڈنگ پالیسی 2025 سے نافذ کریں گے۔ کراچی کے طلبہ کو اس سال کتابیں بھی بر وقت نہیں ملی، کالجز میں نصاب بھی پورا نہیں ہو سکا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے بغیر جو ہے وہ نیا گریڈنگ سسٹم نہیں لا سکتے۔ بورڈ کے چیئرمین کی کمیٹی میں یہ معاملہ رکھیں گے۔ جی ٹھیک ہے آئمہ، ہمیں اپڈیٹ کرتی ہے۔ سوال سے چیئرمین انٹر بورڈ نے مزید کیا کہا ہے وہ بھی سنواتے ہیں۔ یہ اس پہ ہماری ابھی کاؤنسل جو SBCC چیئرمین کمیٹی ہوتی ہے اس میں یہ ابھی جائے گا، لیکن اس کا ہم نے جو OMR کا سلسلہ جو ہمیں انسٹرکشنز ملے ہیں کہ ہم 2025 سے اسٹارٹ کریں گے، تو نئی گریڈنگ پالیسی بھی ہم 2025 سے شروع کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے بچوں کا تعلیمی معیار بنسبت پنجاب اور KPK کے کم ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک دم جو ہے وہ ان والا جو گریڈنگ سسٹم ہے اس کو فی الحال ڈیلے کروائے اس سال، اور اگلے سال سے باقاعدہ ہماری کتابیں بھی ٹائم پہ آ جائیں۔ ٹیکسٹ بکس کی کتابیں بھی ٹائم پہ نہیں پہنچ رہی اور سلیبس کور بھی نہیں ہو رہا پراپر، تو جب سلیبس بھی کور ہو جائے تو پھر ہم اس میں امینڈ کر سکیں گے کہ یہ جو ہے وہ گریڈنگ سسٹم لائے۔ وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ نے قلم دان سنبھالتے ہی اہم احکامات جاری کر دیے۔ مانیٹرنگ افسران کو ہر ماہ اپنے اسکولوں کی کارکردگی رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر تعلیم سندھ نے کہا ہے کہ جن اسکولوں میں اساتذہ تعینات ہیں لیکن بچے نہیں، ان کی تعداد کا پتہ لگایا جائے۔ جو اسکول بند ہو چکے لیکن اساتذہ تعینات ہیں اور خستہ حال عمارتوں والے اسکولوں کی معلومات بھی فراہم کی جائیں۔ بنیادی سہولیات سے محروم اسکولوں کے حوالے سے بھی رپورٹ تیار کی جائے۔ مانیٹرنگ افسران کو روزانہ اپنے اضلاع کے اسکولوں کا دورہ کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ ہر ماہ کی 25 تاریخ کو ڈائریکٹر آفس میں رپورٹ جمع کرانی ہوگی۔ سردار شاہ نے چیف مانیٹرنگ افسران کو متعلقہ اضلاع کے ڈیپٹی کمشنرز کے ساتھ ہر ماہ میٹنگ کی بھی ہدایت جاری کر دی۔ وفاقی حکومت کی ہدایت پر سندھ میں 7 مذاہب کے تعلیم دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ تعلیم نے اقلیتی طلبہ کے لیے نصاب تیار کر لیا ہے۔ نئے نصاب میں ہندو مت، بدھ مت، سکھ مت اور عیسائیت شامل۔ زرتشت اور کیلاش اور بہائی مذاہب کے طلبہ بھی اپنا مذہب پڑھ سکیں گے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں آئمہ خان کی اس رپورٹ میں۔ کے اسکولز میں 7 مذاہب کی کتابیں پڑھانے کے لیے پلان تیار۔ اقلیتی طلبہ کو عیسائیت و دیگر مذاہب کی کتابیں پڑھائی جائیں گی۔ اقلیتی طلبہ کی تعلیم کی فراہمی کے لیے 5ویں جماعت تک کی کتابیں چھپ چکی ہیں۔ ملک میں اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے پاکستانی طلبہ کے 7 مذاہب شامل ہیں۔ مذاہب میں بہائی، بدھ مت، عیسائیت، ہندو مت، کیلاش، سکھ مت اور زرتشی مذاہب شامل ہیں۔ چیف ایڈوائزر کیریکولم محکمہ اسکول ایجوکیشن ڈاکٹر فوزیہ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 60,000 سے زائد دوسرے مذاہب کے طالب علم زیر تعلیم ہیں۔ اقلیتوں کے لیے موجودہ نصاب میں شعبوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اخلاقیات کے مضمون کو دینی علوم کے نام سے اپ گریڈ کر دیا ہے، جس میں تمام مذاہب کا مواد ہے۔ ہمارے پاس آلریڈی جو ریلیجس اسٹڈیز کے نام سے ایک پہلے ایتھکس ہوتا تھا، لیکن اب ریلیجس اسٹڈیز ہے جو کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ پڑھتے ہیں، ان کے ٹیچرز بھی ہیں۔ آپ جو بھی اس وقت بات کریے جو کہ ریسنٹلی کیا گیا ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو کتابیں ڈیولپ کی گئیں، وہ کتابیں ابھی 1 سے 5ویں تک کی ہیں۔ ظاہر ہے وہ کتابیں ابھی آ گئی ہیں، لیکن وہ اس کے لیے ہائرنگ کیا ہوگی، کس طریقے سے ہوگا، وہ ابھی اٹ ہیز یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ۔ ڈاکٹر فوزیہ نے واضح کیا کہ اقلیتی نصاب پڑھانے کے لیے اساتذہ کی بھرتی کا عمل بھی جلد کیا جائے گا۔ آئمہ خان، City 21۔
सिंध में टैक्स अदा न करने वाली कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया गया। फैसला गुज़श्ता रोज़ एक्साइज एंड टैक्सेशन शर्जील इनाम मेमन की हिदायत के बाद किया गया। ज़राए महकमा एक्साइज के मुताबिक अब सरकारी महकमों की गाड़ियों से भी टैक्स वसूल किया जाएगा। कई सरकारी महकमे गाड़ियों का टैक्स अदा नहीं करते। टैक्स अदा न करने वाली गाड़ियों में 50% कमर्शियल गाड़ियाँ हैं। महकमे ने सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की हिदायत के बाद मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। सूबाई वज़ीर ने टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ वाज़ेह अहकामात भी दिए हैं। शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा एंटी नारकोटिक्स का इजलास में सूबाई वज़ीर ने हर किस्म की मनशियात बंद करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे सूबाई वजीर एक्साइज हैं जो सीनियर वजीर हैं शर्जील इनाम मेमन, उनकी ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है। इस इजलास में हर तरह की मंशियात के खिलाफ उन्होंने कहा है कि सख्ती की है और ज़ीरो टॉलरेंस है। सेक्रेटरी एक्साइज ने इस हवाले से एक ब्रीफिंग दी है। इसमें एंटी नारकोटिक्स के तमाम अफसरान मौजूद थे। शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सूबा सिंध में खास तौर पे जगह जगह पे छापे लगाए जाएं और मंशियात के रोकथाम के लिए जिस हद तक उन्होंने बाकायदा अहदाफ दिए हैं महकमा एक्साइज के अफसरान को और कहा है कि ये जो हदफ दे रहा हूँ इन तमाम अहदाफ को पूरा करके दे दें। तो ख़ास तौर पे उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में सूबा सिंध में कच्ची शराब की जो कारखाने बनते हैं, जहाँ पे अड्डे हैं जहाँ पे शराब बन रही है, उसको रोका जाए और शहर में चर्स और हीरोइन और दीगर जितनी भी मंशियात है, कराची शहर में तैलीमी इदारों तक मंशियात पहुँच गई है, जो काबिले इंतहाई अफसोसनाक बात है, उसको रोका जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि महकमा एंटी नारकोटिक्स के तमाम अफसरान जो हैं, जो अमला है, वो जो वर्दी है उनके लिए मुख्तस वर्दी के साथ रहें। बेवर्दी जो भी मुलाजिम या अफसर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि वो एक हफ्ते के अंदर अंदर रिजल्ट चाहते हैं। महकमा एक्साइज एंड नारकोटिक्स के अफसरान उन्हें रिजल्ट प्रोवाइड करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज जमाली अपडेट कर रहे थे। होलसेल मार्केट में ईरानी मज़ाफ़ाती खजूर की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। अपडेट करेंगे काविश मेमन। बिल्कुल, देखें ईरानी मज़ाफ़ाती खजूर की मार्केट में किल्लत का खदशा पैदा हो चुका है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि ईरान से एक्सपोर्ट में मुश्किलात के सबब मार्केट में आने वाले दिनों में जो ईरानी मज़ाफ़ाती खजूर है उसकी किल्लत पैदा हो सकती है। क्या वजूहत है, क्या कंसर्न है ताजरों के? मेरे साथ इस वक्त साबिर शेख मौजूद हैं, उनसे जाते हैं। साबिर, बताइएगा क्या वजूहत हैं और कितनी हम रमज़ान मुबारक में इम्पोर्ट करते हैं? इस तरह है कि ईरान ने पिछले 15 दिन पहले जो उनका गुमरुक कहलाता है, हम कस्टम कहते हैं, जो मुज़ाफ़ती पे 9 से 10 मिलियन था, तकरीबन लाख सवा लाख रुपए बनते थे, उन्होंने एकदम से इसको बढ़ा के 500 मिलियन कर दिया। 500 मिलियन से बढ़ा 24-25 लाख हो गए। तो उसकी वजह से जो है ना, उनकी पाकिस्तान ने जब देखा कि 25 लाख रुपए एकदम से गाड़ी पे टैक्स बढ़ गया, तो उन्होंने इंपोर्ट करना बंद कर दिया। असल में ये मज़ाफ़ाती जो है सॉफ्ट नरम सी खजूर होती है, तो रुतब कहते हैं इसको। तो रमज़ान के जो दिन होते हैं इसमें इसकी सबसे ज़्यादा सेल होती है, क्योंकि हर आदमी को एक नरम खजूर अपने दस्तरखान पे चाहिए होती है। तो इस अवकात के दौरान जो इन्होंने इस पर पाबंदी लगाई थी, तो वो शार्ट हो गई है, खजूर की आमद नहीं हो सकी, उसकी कमी महसूस हो रही है। माल आएगा, लेकिन अब आने के बाद उसको तो तकरीबन 5 से 7 दिन चाहिए होते हैं वहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए। तो फिर आपको पता है कि रमज़ान आखिर में चला जाएगा, तो वो जो एक्सपेक्टेशन थी उनकी वो ख़त्म हो जाएगी। उनके अपने पास माल रह गए, तो हमारे पास भी है, यहाँ मार्केट में तंगी है, माल आएंगे तो थोड़ा सा रेट जो है वो नीचे आ जाएगा। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ खजूर मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौजूद थे। उन्होंने कंसर्न्स का इज़हार किया और कहा है कि इस वक्त ज़ाहिर है कि ईरान से मज़ाफ़ाती खजूर की इंपोर्ट में मुश्किलात का सामना है, तो ये मार्केट में इस वक्त पैनिक की सूरत हाल और ताजिर भी काफ़ी परेशान है। जी, नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एन में लगे बचत बाज़ार में मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं अय्याज राना से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम जो है नॉर्थ नाज़िमाबाद आए हैं। यहाँ पे बचत बाजार जुम्मे का रोज़ है और बचत बाजार लगाया गया, जिसमें आवाम की सहूलत के लिए जो है वो कीमतें का तयन करने के लिए कमिश्नर कराची की लिस्ट यहाँ लगा दी गई है। अब होता ये है कि जी जो मार्केट रेट है उस हिसाब से यहाँ पे जो है आवाम को वो सहूलत तो दी जा रही है, लेकिन मार्केट रेट पे बेचा जा रहा है। जो बचत बाजार के रेट है वो तो है ही नहीं।
अब जब हमने उनसे ऑफ दी कैमरा जब आए, हमने पूछा भाई केला क्या दर्जन है, तो उस वक्त 200 रुपए दर्जन था। यहाँ पे अक्सर फ्रूट वाले होते हैं, लेकिन ले दे के बचत बाजार में एक ही फ्रूट आ रहा है। आप जरा बताइएगा, आपने चीकू लिया, आपको किस कीमत में दिया? आपको हमने 130 रुपए 130 रुपए पर केजी लिया। आपको लिस्ट में क्या 113 रुपए लिखा हुआ है। और आपने कितने में लिया बचत? 130 रुपए। और आप समझ रहे हैं कि जो क्वालिटी इसमें दिख रही है वो दर्जा 2 में 2 नंबर क्वालिटी है, 2 नंबर क्वालिटी। सेब ले लें, सेब इस वक्त ये 350 रुपए दे रहे हैं। हमने तीनों बचा 200 देंगे, अगर देंगे तो हम इसको केले उन्होंने उठा लिए, 200 रुपए दर्जन दे रहे थे। तो ये तमाम चीजें अभी केले फौरन उठा लिया, ये तो आवाम भी अभी हमारे सामने बोल के नहीं, पे कार्रवाई करेंगे अगर इन्होंने इस तरह भेजा है इस रेट के अलावा। तो देखें, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आवाम को जितनी सहूलियत फराहम कर सकते हैं वो हमारी पूरी कोशिश रहेगी। कमिश्नर कराची की कोशिश है, रोजाना की रेट लिस्ट जारी हो रही है रमजान के अंदर। अब आपका ये काम बनता है कि आप इसके ऊपर, हमारा भी डिपार्ट जाहिर बात है इसी के ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंट करने के लिए ही ड्यूटी अफसरान को भेजा जाता है। तो सर जी ये फिर क्यों नहीं मिल रहा आवाम को? तो रिलीफ नहीं मिला? क्यों नहीं मिलेगा? बात बताइए क्या, जैसे कोई कस्टमर आता है ना, कोई कस्टमर आता है, कोई भी कंज्यूमर आ रहा है, अगर उसको कोई मसला होता है वो बताता है, हम भी देखते रहते हैं। अगर बेच रहे होते हैं तो हम फौरन कार्रवाई करते हैं, ये नहीं है कि नहीं छोड़ देते हम लोग। अब इंतजामिया जो बचत बाजार की वो भी यहाँ पे आई है, वो लिस्टों के हिसाब से बात कर रही है, लेकिन यहाँ पर आवाम की सहूलत के लिए जो लगाया जा रहा है, एक तो वो दर्जा दोम है जो सामान जो फ्रूट बेचा जा रहा है, साथ साथ जो कीमतें हैं वो रिटेल बाजार की कीमतों के अंदर जो है इस वक्त फ्रूट की फरोख्त जो है यहाँ बचत बाजार में इस वक्त जारी है। जी, यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों को आटे के असूल में मुश्किलात का सामना है। अपडेट करेंगे वसीम इफ्तिखार। आज बिल्कुल रमज़ान मुबारक में भी हम देख रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर शहरियों के लिए दर्द-सर बने हुए हैं। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज का तो इतलाक़ किया जा चुका है, लेकिन 19 जो बुनियादी अशिया हैं जिस पर सब्सिडी दी जानी है, उसमें अहम चीज़ जो है वो आटे के उसूल के लिए शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो ज़राए हैं उनका ये बताना है कि हफ़्ते में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा जो है वो फराहम किया जाता है, और आटे के उसूल के लिए शहरी को किन किन मुश्किलात से गुजरना होना पड़ता है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, ये बताएं कि आटा मिलता है नहीं मिलता यूटिलिटी स्टोर्स पर, क्या कहेंगे? आटा तो पहले मिलता नहीं है, और जब मिलता है तो फिर गैर ज़रूरी चीज़ें इतने देते हैं कि वो गरीब आदमी उसका सोच भी नहीं सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अभी एक तेल 650 रुपये का मिल रहा है, अब उसके साथ जो है आप 3-3.5 हज़ार रुपये का सामान मिल जुला के दोगे, 1 घी का तेल ही देगा, तो फ़ायदा क्या हुआ? इससे अच्छा नहीं है कि वहीं अपना घर के पास से थोड़ा सा लेके अपना गुजारा चला ले। सही है, किलो आटा लेके। आंटी आटे लेने के लिए आई हैं, अब क्या कहेंगी, कितनी मुश्किलात पेश आती है जब आटा नहीं मिलता? आटे मिलते नहीं है, बहुत सीना मुश्किल होते हैं। सही है, तो फिर क्या 3-4 चक्कर आके फिर एक दफ़ा मिलते हैं। ये है वो शहरी जो कि यूटिलिटी स्टोर्स का चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगा के आजिज़ आ जाते हैं, लेकिन आटा इनको दस्तयाब नहीं हो पाता, शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इनका ये कहना है कि जो इनके मोहल्ले में जो दुकानें हैं वहाँ पर आटा महंगा होने की वजह से इनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुका है, लेकिन जब सस्ते आटे के हुसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते हैं तो उस वक्त इनको मायूसी का सामना करना पड़ता है जब आटा दस्तयाब नहीं होता। शहरियों का मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की फराहमी को यकीनी माना जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी, रमज़ानुल मुबारक में भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल है। रिपोर्ट कर रहे हैं आयमा खान। शहर कायद में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। रमजानुल मुबारक में भी लांडी 3.5 नंबर के मकीनों को पानी ना मिल सका। इलाका मकीन कहते हैं 1 साल हो गया पीने का पानी नहीं। महंगाई के इस दौर में पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों ने बताया कि लाइनों में सेवरेज मिला पानी आता है। ये काफ़ी टाइम हो गया है, पानी नहीं आ रहा। लांडी 3.5 नंबर इलाका टूसी है, यहाँ पानी नहीं है बिल्कुल भी। काफ़ी टाइम से बहुत परेशानी है हम लोगों को पानी की। यहाँ हर साल की यही कहानी है, रमज़ान से हफ्ते पहले से बिल्कुल ही पानी बंद है, यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। ये बक़ैद पे साफ होता है, जब कुर्बानी का जानवर लाते हैं तो चांद दिखने के बाद पानी बिल्कुल गायब हो जाता है बक़ैद पे। यही मामला चल रहा है यहाँ पे। लोगों ने हुक्मरानों से मुतालबा किया कि कम से कम रमज़ान में तो पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन उस्मान के साथ आयमा खान, सिटी 21। कश्मीर कॉलोनी गली नंबर 6 में गैस मीटर से पानी आने लगा। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। चूल्हों में गैस नहीं और गैस मीटर से पानी निकलने लगा। ये मनाजिर कश्मीर कॉलोनी गली नंबर 6 के हैं, जहां अरसे दराज से गैस पाइपलाइनें और मीटर तो नस्ब हैं, लेकिन उनमें गैस के बजाय सेवरेज का पानी आता है। इस सूरत हाल ने इलाका मकीनों को जहनी अजियत से दोचार कर रखा है, जो खाना तैयार करने के लिए गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं।
चाहूँगा कि 2 साल हो गए तकरीबन 2 साल से यहाँ पानी नहीं आ रहा, तो काफ़ी लोग मतलब कि गैस नहीं आ रहा, तो काफ़ी लोग परेशान हैं। तो हम लोग सिलेंडर भरवाते हैं, 300 रुपये किलो में हमें जो ना गैस मिल रही है, तो एक हफ़्ता भी गैस यूज़ नहीं होती 1 किलो, तो काफ़ी मुश्किलात हो रही है। सीवरेज का पानी है, ये 3-4 दफ़ा हम लोग निकालते हैं, तो फिर कोई कम थोड़ी बहुत आती है, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं आती है। यहाँ तो है ही नहीं है बिल्कुल ही ना, 4-5 साल से बिल्कुल ही नहीं है, ना कोई आके चेक करता है, ना कोई। ऐसी परेशानी हो रही है हर घर में, यही मसले हैं। इलाका मकीनों का SSGC हुक्काम और हुकूमत से मुतालबा है कि उनके मसाइल हल करके गैस फराहम की जाए। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। माह रमज़ान में भी बिजली लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया है। तफसीलात जान लेते हैं फरहान खान से। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो मैं आपको लांडी के इलाके 2C एरिया से रिपोर्ट कर रहा हूँ। बिजली का शदीद बहरान जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग के बायस जो है वो इलाका मकीन शदीद परेशान है। इस वक्त मैं आपको इस वक्त भी जो है वो इलाके के अंदर जो है वो लोड शेडिंग है, बिजली जो है वो मैसर नहीं है। माह रमज़ान चल रहा है, रोज़े के अंदर जो है वो बिजली का ना होना जो है वो खासा लोगों को परेशान भी करता है। कुछ इलाका मकीन हमारा मौजूद भी है, इनसे भी तफसीलात मुझे बताइएगा कितनी जो है वो लोड शेडिंग हो रही है, कितने घंटों की हो रही है, और सहर अफ्तार के वक्त क्या लोड शेडिंग की जाती है? बिल्कुल की जाती है, कम से कम 2.5 से 3 घंटे की लोड शेडिंग यहाँ पर हो रही है। सहर अफ्तार 2.5 से 3 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है यहाँ पर इलाके में, जो है ना शहरी के टाइम भी चली जाती है, कभी अफ्तार के टाइम भी, और अभी भी लाइट मौजूद नहीं है इलाके में। अभी कुछ पता भी नहीं है कब आए। बिल तो ऐसे आ रहे हैं कि बस बताओ, उनकी गाड़ियों पर लाइन लगा के खड़े हुए लोग बिल लेके। मैं भी अपना खुद बिल सही करा के आया हूँ, बस ये है कभी जिसका जैसे दिल चाह रहा बिल भेज दे रहा है, लोग किस्तों पे करा रहे हैं, बिल परेशान है, बिलों की वजह से बहुत परेशान है लोग। बताइएगा कि लोड शेडिंग जो हो रही है इससे जो है वो रोज़ेदार कितना परेशान हो रहा है, और सहर अफ्तार के वक्त भी जो है वो हमने सुना है यहाँ पे लोड शेडिंग गायब हो। रोज़गार काफ़ी परेशान है। लोड शेडिंग कभी कभी शहरी के टाइम में भी हो रही है और रात में हो रही है। रात में सोए या लोड शेडिंग का सामना करें, दिन में भी लाइट नहीं है, रात में भी लाइट नहीं है। 1.5-2 घंटे 1 घंटे आती है और 3-3 घंटे मुसलसल जाती है। सबसे ज़्यादा जो इलाका मकीन हमारा मौजूद है, उनसे आपने तफसीलात भी सुनी। उनका भी यही कहना है कि 1 घंटे लाइट आती है तो 3-3 घंटे जो है वो लाइट गायब रहती है, जबकि सहर अफ्तार के वक्त में भी जो है वो लोड शेडिंग का सामना है, जबकि दिन के औकात में भी इस वक्त भी जो है वो इलाके के अंदर लाइट मौजूद नहीं है, जिसके बाद जो वो रोज़ेदार जो है वो खासा परेशान है। यही मुतालबा करते हैं कि इलेक्ट्रिक से खास कर सहरी और अफ्तार के औकात में जो है वो लाइट की फराहमी यकीनी बनाई जाए। जी। SM मुनीर रोड इंतजामिया की नज़रों से ओझल है। सड़क पर जमा पानी शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बन रहा है। इस हवाले से तफसीलात हम जान लेते हैं नमरा रियासत से। जी नमरा, बताइएगा। बिल्कुल जी, शहर की मुख्तलिफ शाहराएँ हम देख रहे हैं कि इंतजामिया की नज़रों से ओझल है। उन्हीं में एक SM मुनीर रोड भी शामिल है, जो कि नासिर जम से चमड़ा चौरंगी को मिलाता है, और ये अहम शाहरा है जिस पे हमा वक्त जो है ट्रैफिक का दबाव हमें नज़र आता है, लेकिन ये कई माह से जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। खस्ता हाल होने के साथ साथ यहाँ पर जो सीवरेज का पानी जमा है वो भी शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बन रहा है। और रमज़ान का आज पहला जुम्मा है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से इस सड़क पर 2 से 3 मसाजिद यहाँ पर मौजूद हैं, और मस्जिद जाने वाले जो नमाजी हैं वो इस गंदे पानी की वजह से जो है वजह से 2-4 नज़र आते हैं। कि वो का कहना है कि कई माह से ये जो सड़क है वो ख़राब है, खस्ता हाली का शिकार है। गंदा पानी यहाँ पे अक्सर जो है वो जमा हो जाता है, जिसके बाद जो है सड़क जो है मज़ीद जो है वो अज़ियत का सबब बनती है, सफरी मुश्किलात का सामना रहता है। लेकिन इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई इंतजामात नहीं किए गए, न सड़क की मरम्मत का काम किया जा रहा है, और न इस आब निकासी की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कोई इक़दाम किए जाते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है इंतजामिया से कि बर वक्त इसके लिए काम किया जाए, चूँकि रमज़ान है और मसाजिद में जाने वाले लोग जो है वो यहाँ से अजीब से 2-4 और इसके साथ साथ हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी गुजर होता है, पीपल्स बस सर्विस की R3 का जो रूट है वो भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से वो भी गुजरती है, वो भी अजीब से 2-4 रहती है। इसके अलावा करीब में ही जो है कंपनीज़ हैं उनकी बसेस भी यहाँ से गुजरती हैं, तो तमाम जो शहरी हैं वो यहाँ से अजीब से 2-4 है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं। बताइएगा कब से ये सूरत हाल? ये तकरीबन कोई 2 बजे के टाइम पे मसला हुआ है, तो अचानक जुम्मे की नमाज़ पे गए तो वापसी आया तो सारा पानी था रोड पे। काफ़ी लोग जो ना मुश्किलात का सामना कर रहे हैं पानी की वजह से, जो ना नमाज हो गई की वजह से कपड़े भी ख़राब हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, हर कोई अपनी मर्ज़ी कर रहा है हर कोई। हालांकि पहले भी ऐसा हुआ, यानी कई दफ़ा यहाँ से ऐसा हो चुका है कि भाई ये साफ़ करते हैं बस मशीन लगा के उसके बाद चले जाते हैं, फिर दोबारा ये मसला होता है। ये बताइएगा कि पानी लोग का काफी मसले मसाइल का शिकार हो गए हैं। नमरा रियासत हमें अपडेट करी थी, वहाँ के शहरी भी अजियत से 2-4 हैं। बहुत शुक्रिया नमरा।
गुलबर्ग टाउन कौंसिल ने मरकजी इमारत में कायम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के यार्ड को गैर कानूनी कब्जा करार दे दिया है। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, जब से मुंतखब नुमाइंदे आए हैं गुलबर्ग टाउन इंतज़ामिया और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के दरमियान अराजी का तनाज़ा जो है वो जारी है और वो हल होने का नाम नहीं ले रहा है। कहानी कुछ इस तरीके से है कि गुलबर्ग टाउन की जो मरकज़ी इमारत है उसका तकरीबन 2 एकड़ के करीब रकबा जो है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ज़ेर कब्ज़ा है और जहाँ पर उनका यार्ड बना हुआ है। टाउन इंतज़ामिया का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि ये अराजी चूँकि उनकी है इसको फिलफौर खाली किया जाए। इस सिलसिले में गुलबर्ग टाउन की कौंसिल ने हालिया दिनों में करारदाद भी पास की है। अगर इस करारदाद के नतीजे में भी ये जगह वागुजार ना हो सकी तो फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। यूसी-8 के चेयरमैन फारूक नेमतुल्लाह जो कि फोकल पर्सन भी हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया फारूक साहब, फरमाइएगा मामला क्या है, हल क्यों नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में पहले भी ये सारी बातें आपके इल्म में आती रही हैं। तनाज़ा असल ये है कि डीएमसी सेंट्रल ने जो मुआहिदा किया था उस मुआहिदे के तहत सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास सिर्फ होना है यार्ड, ना ये पार्किंग एरिया, ना ये बिल्डिंग, ये उन्होंने, और ना ये दीवार। तो ये सारा का सारा इनका इल्लीगल एक्ट है। हम करस्पॉन्डेंस से ये सारी तमाम चीज़ों से इसको कोशिश में लगे हैं सॉल्व करने के लिए और कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे से, लेकिन बात यहाँ आकर जो है ना वो ख़त्म होती है। तो हमारी इनसे के साथ मीटिंग्स भी हुई, फिर हमने बहुत सोच समझ के 2 लीगल नोटिस भेजे। इन्हें उसका जवाब देना चाहिए था कि देखिए आपकी तो हमारी करस्पॉन्डेंस है, हम इस मसले को हल कर लेंगे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और हमारी सारी कोऑपरेशन के बावजूद भी इन्होंने जो हमारा GTS है जिस पे सिर्फ अब कानून के मुताबिक गुलबर्ग का कचरा आना चाहिए, लेकिन क्योंकि नाज़ाबाद और लियाकताबाद टाउन का भी आ रहा था, बग़ैर हमें बताए, बग़ैर इल्म में लाए नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन का कचरा भी ला के यहाँ फेंकना जो है वो शुरू किया, जिससे उसकी जगह की हालत ही जो है वो अजीब व गरीब हो गई। बजाय लैंडफिल साइड लेके जाते उल्टा यहाँ ला कर जाना पे। तो इसलिए अब हमने डिसाइड कर लिया कि जो हम लिहाज सब करते थे, कॉपरेशन हम करेंगे, जो हम, क्योंकि वो सफाई का मामला है, लेकिन अब इस बिल्डिंग को हम वापस लेकर आए। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की ढिटाई के नतीजे में गुलबर्ग टाउन की इंतज़ामिया को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। ना सिर्फ मुंतखब नुमाइंदे बल्कि जो अफसरान हैं वो भी परेशान हैं, उनके पास जो है वो दफातर मौजूद नहीं हैं और टेंट लगाकर बाकायदा जो है कौंसिल का इजलास भी मुनक्किद किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि फिलफौर इस ज़ेर कब्ज़ा अराजी को जो है वो गुलबर्ग टाउन के हवाले किया जाए ताकि गुलबर्ग टाउन के मामलात को जो है बआसानी चलाया जा सके। जी, सिंध हाई कोर्ट ने न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में तजावुजात से मुतालिक दरख्वास्त पर कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। अपडेट करेंगे मुमताज़ शमाली। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में तजावुजात से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जहां पर इंडस्ट्री के जो वकील हैं उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है लेकिन वहां पर गैर कानूनी घर बन गए, कच्ची आबादी बन गई है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल जो वहां पर गाड़ियां आती हैं, जहां पर लोग आते हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दौरान समाअत जो वहाँ के मकीन हैं उनकी जानिब से MQM के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन भी अदालत में आए। उन्होंने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वहाँ से वो मुंतखब MNA भी हैं, लिहाजा वो जो वहाँ के रिहायशी हैं वहाँ उनके जानिब से अदालत में अपने दलाल देंगे। दौरान समाअत सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पावर ने रिमार्क्स दिए कि कोई ऐसी कमेटी बनाते हैं जिसमें आला सतही कमेटी हो, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स हों, रिहायशियों का भी एक नुमाइंदा हो और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका भी एक नुमाइंदा हो और इस मसले का हल निकालें, क्योंकि वहाँ पे जितने लोग हैं वहाँ पर उनको फौरी तौर पर निकाला भी नहीं जा सकता, उनको ज़िंदा दफन भी नहीं किया जा सकता, उनका भी जो है कानूनी हक बनता है। MQM के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन ने यह भी दलाल दिए कि इन तमाम रिहायशियों के पास गोठ आबादी और कच्ची आबादी के लीजेस भी मौजूद हैं, लिहाजा अदालत ने आइंदा समाअत पर कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब की है और इस दरख्वास्त की मज़ीद समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। और गवर्नर सिंध ने बाजियाब बच्चों अयान और अनाबिया को लैपटॉप और ईदी दी है। दोनों की मुकम्मल कफालत तालीमी अखराजात भी बर्दाश्त करने का ऐलान किया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे खुशी रहमानी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। गवर्नर सिंध ने बाजियाब बच्चों के अयान और अनाबिया को लैपटॉप और ईदी दी है। दोनों की मुकम्मल कफालत तालीमी अखराजात भी बर्दाश्त करने का ऐलान किया है।
पाकिस्तान रेलवे ने माल बरदार ट्रेन चलाने में अहम संगे मील अबूर कर लिया। महकमा रेलवे ने 1 किलोमीटर 250 फुट से ज़्यादा लंबी माल बरदार ट्रेन चलाकर रिकॉर्ड कायम कर लिया है। ये जो रेल है 2500 फुट से ज़्यादा लंबी रेल है, जो कि माल बरदार ट्रेन चलाकर इन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। पाकिस्तान रेलवेज़ की तारीख की सबसे लंबी और सबसे भारी माल बरदार ट्रेन आजमाइशी रवानगी कामयाब हो गई है। माल बरदार ट्रेन 50 हाइड्रोमेगन में 3000 टन जो है वो लोड के साथ चलाई गई है। पाकिस्तान रेलवे हुकूमत की तरफ से नाफिज करदा एक्सेल लोड की हद के बाद माल बरदार ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। बंदरगाह से इंड्रोम मुल्क कार्गो की मांग बढ़ने से महकमा रेलवे माल बरदार ऑपरेशन में इजाफे के लिए रोलिंग स्टॉक तैयार कर रहा है।